Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Isha. You guys must have seen my transformation reel, how I went from 67 kg to 57 kg in just 10 months. So today I'm gonna be talking about my journey. Just a quick disclaimer before we begin. Whatever I'm gonna be sharing in this video is purely gonna be on my personal experience. Before incorporating any of these things in your life, please consult your doctor first. So, before I share all the tips, I will just give a quick story like how I found out that I had PCOS and everything. So, story goes back to the pandemic. I was in 11th at that time. I used to be that kind of person who will stress a lot, who will overthink a lot. I used to spend hours studying and sitting at one place. So I was gaining weight and my body started showing symptoms like facial hair, and I also got hormonal acne, and it was really hard to get rid of them. Also, I started getting acne on my back. Besides that, I was I will always feel low energetic. I will never get a good quality sleep, or I just don't have energy at all in my body during the daytime. I didn't know that I had PCOS until my facial hair starts growing. So I was searching for all the remedies how to like get rid of facial hair at home. That if you have facial hair, you might be suffering from PCOS. Then I talked about it with my mother, and then we went to a gynec, and then she did an ultrasound. So we find out that I had cyst on my ovaries, and she recommended me to have birth control pills. But I have already searched on Google that we should not have birth control pills at such a young age. So we say no to that. And I started trying all sorts of home workouts or changing my diet and everything. And initially, it nothing was working out because I think I was just fighting against my body until a point came. Then it all started making sense, and I was just not fighting it, but I was like staying with it. I was staying consistent. I was making habits which would stay consistent. So the thing is, people like, अगर तुम्हारे को PCOS हो गया, people are gonna like, girls are gonna fight it, just get rid of it. They are not understanding why did it happen. I was at the same place. So when I was when I start getting fat and when I start having acne, I was just कि मेरे को पतला होना है, मेरे को फटाफट से अपना चेहरा साफ करना है यार, मेरा कॉलेज बिगिन होने वाला है, तो मेरे को था कि मेरे को भी बहुत अच्छी कॉलेज लाइफ जीनी है, मेरे को अच्छा दिखना है ऐसे। सो आई वाज जस्ट फाइटिंग कि नहीं, मेरे को ख़त्म करना है, तो मैं वर्कआउट कर रही हूँ, कभी मैं ये खा रही हूँ, फिर वर्क नहीं कर रहा है तो मैं इतना डिसअपॉइंट हो रही हूँ कि मैं फिर बहुत ज़्यादा बाहर का ऐसे जंक फूड खा लेती थी। तो इट वाज लाइक हम लड़े जा रहे हो ना। फिर धीरे धीरे समझ आया कि पीसीएस इज नॉट अ डिजीज, इट्स जस्ट अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. Just a way that your body is communicating to yourself that you are doing bad things to your body. You are having bad habits in your life that you need to change before some serious disease comes to you. So I have divided all the key takeaways from my journey into three parts. The first one is stress management. You might be having a good diet, you might be working out daily, but if you are not focusing on your stress management, you are never gonna lose weight. No one focuses on stress, which is the major factor. When you are stressed, your body produces a hormone called cortisol, and cortisol is basically a stress hormone, and when you have higher levels of it in your body, it basically messes up your balance between estrogen and progesterone, and which leads to irregular periods and disturbs your whole menstrual cycle. Besides that, it also
messes up your insulin, due to which you gain weight. एंड स्ट्रेस की वजह से तुम्हारे को रात को अच्छी नींद भी नहीं आएगी, स्ट्रेस की वजह से तुम सारा दिन थका थका फील करोगे और तुम्हारा मूड ऑब्वियसली और ख़राब होगा। और एज वी ऑल नो, हम हमारा मूड जब ख़राब होता है तो हम खाना खाते हैं बाहर का, तो तुम और बाहर का खाना खाओगे एंड इट विल अगेन लीड टू वेट गेन। तो तुम, ट्रस्ट मी, तुम वर्कआउट भी अच्छे से नहीं कर पाओगे अगर तुम स्ट्रेस्ड हो। और इवन अगर तुम स्ट्रेस्ड होते हो तो उसमें तो वर्कआउट करना और तुम्हारी बॉडी को ख़राब करता है। सो ट्रस्ट मी, you need to focus on managing your stress first. So there are few things that you guys can do to manage your stress. Do journaling, try yoga, do meditation, go out with your friends, have a talk with your family or your close ones, share everything, then you might feel better. Also, instead of scrolling on Instagram, try to make some time for yourself, sit with yourself, go out, have a walk in nature, and start some calming exercises like yoga or meditation. This helps a lot with stress. Let's move on to the next topic, that is nutrition. So, my biggest advice to you all is that never make any unrealistic diet plans that you are never gonna follow. You might be following it for a month, a week, but you won't be able to follow it for a year. So try to make such changes in your lifestyle which you will be able to incorporate for year, more than years, till your lifetime. So basically what I think is, a lot of people are selling on YouTubes and Instagrams that ये वाली रेसिपी है, ये बना लो, वो बना लो, जिससे if you try to incorporate into your daily life, it's not that easy. कोई सुबह उठ के ऐसा खाना नहीं बना सकता। if you are working, if you are going to college, and even if you are a student, तुम्हारे मम्मी तुम्हारे को सुबह सुबह इतना खाना ऐसे नहीं बना के दे पाएगी। इट्स गोना बी रियली डिफ़िकल्ट कि तुम्हारे लिए अलग ऐसा खाना बन रहा है, बाकियों के लिए अलग ऐसा बन रहा है, नहीं हो पाएगा। सो आई वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम, कि अब मैंने आज ये रेसिपी बना दी, मैंने अपना डिनर, लाइक डिनर में चपाती खानी बंद कर दी थी कि नहीं मैं तो हेल्दी सैलड्स खाऊंगी, नहीं तो जैसे राइस एंड पनीर होता है या फिश करी खाऊंगी, ये सब खाऊंगी। बट वो कितने दिन ही चला, वीक, मंथ्स, और फिर उसके बाद वापस सेम वही खाना। तो इससे बेटर है कि तुम वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करो जो लाइक रियल है, हो सकती है, रियलिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नेम फ्यू रेसिपीज लाइक you can make multi-grain rotis. Also, even if you are having your lunch, dinner, be it anything, try to have a portion of salads. If you are eating दाल तो उसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ करके खाना, तो उससे बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। उसके अलावा देयर आर सम सैलड्स रेसिपीज़ जिसे तुम आफ्टर वर्कआउट खा सकते हो। उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पोर्शन कंट्रोल करना। एक हमारे को बहुत बैड हैबिट लगी हुई है कि हमने जब भी खाना खाना है तो हम टीवी देखेंगे, नहीं तो हमारे हाथ में फ़ोन होगा। ट्राई टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट, क्योंकि तुम बहुत बारी फ़ोन चला रहे हो या तुम टीवी देख रहे हो, तुम बहुत एक्सेस में खा जाते हो। और अपना एक फ़िक्स टाइम रखो खाने का, कि मेरा ब्रेकफास्ट का एक ये टाइम है, मेरा लंच का ये टाइम है, डिनर का ये टाइम है। इसके अलावा स्नैकिंग का टाइम है, इट्स ओके, लेकिन कंटिन्यूसली अगर तुम इसी टाइम के अराउंड डेली खाओगे तो तुम्हारी को ज़्यादा अच्छा लगेगा और तुम्हारे को फैट नहीं लगेगा। उतना खाना जितना मेरे को भूख है, ना कि मेरे को टेस्टी लग रहा है तो मैं एक्स्ट्रा खा रही हूँ, वो चीज़ पे ज़रूर फोकस करना। बाकी मैं ये नहीं कह रही कि बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ कुछ ना खाओ, खाओ, लेकिन थोड़ा सोच समझ के खाओ, कि अगर मैंने वीक में एक बारी खा लिया है तो अब ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीक में नहीं खाऊंगी। अगर तुम डेली खाते जाओगे तो ऑफ कोर्स इट्स गोना हार्म यू। बट इफ़ यू आर eating once a week, oh, it's okay. If you are eating twice a week, it's okay. If you are working out, moving your body, and besides eating that thing, you are eating healthy.
Try to, like, after having your meal, walk for 10 to 15 minutes on a regular basis. Trust me, you are going to lose lot of weight just by following this one habit. Also, लगता है खाना खाने के बाद सौंफ चीनी खाया करो या फिर गुड़ खा लिया करो. It's really take your digestion game to next level. Also try to incorporate yogurt because we do not take probiotics that much in our day-to-day life. So I guess that's all for nutrition. Also tell me if, because I have also been to college and I know it can be really hard to manage your nutrition during college days because you are living in hostels or maybe PGs. So I can give you some tips. If you need that, let me know in the comment section. So now let's move on to the third part, that is workout. तो इफ़ यू गाइस आर थिंकिंग कि आज तो मैं जिम चला गया, अब तो मैं सारा दिन बैठ के फ़ोन चलाऊँगा, सीरीज़ देखूँगा और अब तो मैं सारा दिन बैठ के फ़ोन चलाऊँगा, सीरीज़ देखूँगा या तुम सारा दिन बैठ के पढ़ोगे, तो यू आर नेवर गोना लूज़ वेट. See, PCOS on see PCOS happen because तुम हिल ही नहीं रहे हो, ठीक है? मैं भी एक टाइम पे खेल लिया करती थी, बाहर बैडमिंटन खेलने जाती थी. उसके अलावा सारा दिन मैं बैठ के सीरीज़ चला रही हूँ, नहीं तो मैं बैठे-बैठे पढ़ रही हूँ. ऑफ कोर्स ऑल्सो तुम्हारा स्कूल होता है तो इट्स इनएविटेबल तुम 6 टू 7 आवर्स स्कूल के अंदर बैठे रहोगे. फिर तुम आओगे, ट्यूशन जाओगे, तो भी वहाँ पे बैठे रहोगे. इवन इफ इट्स कॉलेज तो तुम्हारे सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसके बाद तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ 1 घंटा अपनी बॉडी की मूवमेंट करोगे, तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा. नेवर गोना हैपन. ऑल्सो वन मोर थिंग कि ये जो स्टार्टिंग में लोग वो फॉलो करते हैं ना कि हिट वर्कआउट्स और कार्डियो, दिस आर नेवर गोना वर्क. जिस दिन तुम वो करना छोड़ दोगे, तुम्हारी बॉडी दोबारा वेट गेन करना स्टार्ट कर देगी. ट्राई कि तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो. तुम्हारे को मेरे को आई डोंट थिंक सो कि जिम की भी ज़रूरत है. मैं आज तक कभी जिम नहीं गई हूँ, मेरे को जिम सूट ही नहीं करता. हाँ, तुम्हें डेली सुबह एक तो तुम्हारे को रियलिस्टिक रूटीन्स बनानी है क्योंकि मुझे पता है तुम स्टूडेंट्स हो, तुम्हारा एग्ज़ाम भी होगा और तुम्हारे को असाइनमेंट्स भी बनानी है, सब कुछ करना है. तो अगर मैं तुम्हें ये कह दूँ कि सुबह सुबह उठ के ये वाली एक्सरसाइज करो, वो करो, और तुम्हारा अगले दिन पेपर है, तो तुम नहीं कर पाओगे. तो तुम अपनी रूटीन बनाओ ऐसे कि ये मेरा एग्ज़ाम टाइम है तो मेरे एग्ज़ाम टाइम में ये रूटीन है. मैं सुबह उठूँगी और मैं सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूँगी, अपना नॉर्मल हाथों को हिलाऊँगी, कमर को हिलाऊँगी, ख़त्म. बहुत है इतना. उसके अलावा मैं स्टडी कर रही हूँ तो मैं बीच में 40-40 मिनट्स बाद ब्रेक्स लूँगी और मैं एक राउंड काट के आऊँगी ऐसे ही रूम का इधर से उधर. दैट्स इनफ. उसके अलावा बाकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ट्राई कि तुम योगा करो और बहुत अच्छे अच्छे आसन्स आते हैं टू रेगुलेट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड टू बैलेंस योर हॉर्मोन्स, वो ट्राई करो. उसके अलावा मेडिटेशन करना है. एंड कीप ट्राई टू पिक वन हॉबी विच मूव्स योर बॉडी, बी इट टेनिस, बीट बैडमिंटन, या तुम्हारे को रनिंग या नॉर्मल पार्क में जाके खेलना पसंद है, या तुम्हारे को नॉर्मल पार्क में जाके वॉक करना ही पसंद है. इट कुड बी एनी. ट्रस्ट मी, अगर तुम इजी इजी चीज़ें फॉलो करोगे ना तो तुम्हारे को ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स देंगे. ट्राई करो कि रनिंग करो, स्किपिंग करो, क्योंकि स्किपिंग मेरे को ऐसे बेसिकली बचपन से पसंद है, बट वन इट गिव्स गुड रिजल्ट्स. बट रनिंग इज़ रियली गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ. जब भी आई वॉज स्ट्रेस्ड आउट, आई यूज टू रन एंड इट लिटरली टेक्स अवे स्ट्रेस फ्रॉम माई बॉडी. ट्रस्ट मी, लाइक रनिंग तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. इसके अलावा ट्राई कि तुम हिलते रहो बस पूरा दिन. थोड़ा जैसे सुबह उठे तो तुमने अपना बेड बना लिया, उसके बाद तुमने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली, तो तुम ट्राई कर सकते हो कि तुम 10-15 मिनट धूप के अंदर वॉक कर रहे हो. और अपना फिर बाकी पूरा डे टू डे रूटीन है. शाम को तुमने थोड़ा खेल लिया, ऐसे कर लिया, और जस्ट पूरा दिन बॉडी चल रही है. और कुछ स्टेप्स जैसे कि जैसे तुम लिफ्ट की जगह स्टेयर्स चूज़ कर रहे हो, या फिर तुम बाइक की जगह अपना पैदल चल के जा रहे हो, ऐसे ऐसे स्टेप्स
फॉलो करो, क्योंकि ये इजी होते हैं, तुम्हारा इससे माइंडसेट चेंज होता है, और ये लॉन्गर टर्म के लिए होते हैं। और बजाय, और बाकी जो तुम स्टेप्स लेते हो कि ये वर्कआउट रूटीन है, ये यूट्यूब पे 15 वीडियोस हैं, ये मेरे को करनी है करनी है करनी है, फिर देखा ओ यार रिजल्ट तो इतना आया नहीं है, फिर बंद कर दी दूसरी रूटीन, ऐसे नहीं चलेगा ऐसे। वन मोर टिप कि ट्राई, अगर तुम एक्सरसाइज करने के बाद थक जाते हो या तुम्हारे में एक्सरसाइज करने से पहले एनर्जी नहीं होती, एक तो ग्रीन टी पी के एक्सरसाइज किया करो। उसके अलावा थोड़ा सा लाइक नट्स वगैरह खा ली, एंड ट्राई टू हैव एन लाइट आफ्टर वर्कआउट मील। इट रियली गिव्स ग्लो टू योर फेस। अर्लियर मेरे साथ भी ऐसे होता था कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये सब कर रही हूँ, एंड आई वॉज नॉट ईटिंग एनी थिंग, तो मेरे को बहुत वीकनेस फील होती थी, और मेरा सारा चेहरा लाइक माई फेस वुड लुक ड्रेन्ड ऑफ ऑल द एनर्जी। और अगर तुम कुछ खाना खाने के बाद करते हो तो तुम्हारे चेहरे पे ग्लो आएगा बहुत अच्छा। उसके अलावा हाइड्रेट योर सेल्फ। So that's all for today. I think I was not able to explain all the topics into very detail because I just wanted to keep this video a little small. So if you guys need more information on any of these topics, then do let me know in the comment section and I will be very happy to answer. Also, let me know if I should make another video on any of these topics that I talked about in detail. So, bye.